मैं आपको भेजूंगा, मेरा वीडियो आपको भेजूंगा। Non mi raccomando. सामने प्रोड्यूसर्स हैं तो हम लोग हैं यहाँ पे। ये जो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब हम ले रहे हैं ना, ये प्रोड्यूसर्स की बदौलत है। जोरदार तालियां फॉर अरोराज हियर इन द हाउस। Vipul Dhawan, Pooja Arora, Reed Arora co-producer. Of course, we'll have a lot of conversation, a lot of chit-chat. Ladies and gentlemen, I think we are good to go. We can play the teaser now before we have the trailer. There's a small surprise, ladies and gentlemen. Lights dim, and can we have the teaser of Na Jaane Kaun Aa Gaya, a film by Vikas Arora. And our celebrity guest out there, our audience says, कैसा लगा ट्रेलर? क्या बात है? आई थिंक जो ऑर्गेनिक रिएक्शन आया है, आई थिंक हम उससे पता लगा सकते हैं that people are really excited for this one to meet the star cast, ladies and gentlemen, and of course हमारे हीरो जो है यहाँ पे जतिन शर्मा finally बन गया हीरो of March. So gives me immense pleasure, ladies and gentlemen, to introduce one by one our lovely stellar star cast. Can we have a round of applause for the lead, Pranay Pachori? Yes. And meanwhile, मैं चाहता हूं कि yes, हमारा जो पिक्चर्स के लिए बैकड्रॉप है वो लगाया जाए, और प्रणय के साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार जो है वो हम यहाँ पे लोगों को बताएंगे, हमारी ऑडियंसेस को, कि प्रणय ने क्या किरदार प्ले किया है। मैं बड़ा उत्सुक हूं ये शेयर करने के लिए। Before we have to discuss Madhurima Jatin's character, no, we will just have you right away. Well, firstly, thank you everyone for coming and taking out the time to see our trailer. It means a lot to us. And जैसा आप पूछ रहे हैं, reaction is, यही सोच रहा हूँ ना जाने कौन आ गया, because it's very surreal. सब लोग अपने घर से कुछ सपने लेके आते हैं to, follow this little dream, innocent dream of becoming an actor, producer, director. And जब ये culminate होता है और आप सामने देखते हैं, तो you feel के जब खुद की फिल्म आएगी और such big moments happen, it will feel something. But I guess in the moment it's so surreal that it takes time for it to sink in. Takes time for you to process the entire feeling. And I'm so glad that I got to work with such incredible people. They are some of the most finest, lovable people that I got a chance to work with. And just fortunate, counting my blessings. Thank you, Vikas sir, for taking me on board, Jatin bhai. Everyone. ये सीख गए हैं, ये बहुत आगे जाएंगे, ये बहुत जरूरी होता है कहना. And ladies and gentlemen, of course, your hard work, your perseverance has gotten you here, ladies and gentlemen. Can we
Now move ahead if our production team allows us. हम बुला सकते हैं, अभी भी कुछ पेंडिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं. So yes, the lightning and everything is getting shot. अलग चल रहा है यहाँ पे. हाँ, भाई जतिन भाई का जो ब्लेजर जो शाइन मार रहा है ना, तुम्हारी लाइट फीकी पड़ जाएगी. Heroine is right here, the superstar, gorgeous, ladies and gentlemen, Madhurima Roy. Warm welcome. And बहुत सारे सरप्राइजेस हैं फिल्म में and मधुरिमा को देखने के लिए लोग वेट कर अभी आएगी अब आई है ना. So finally, how does it feel, to see yourself on 70mm celluloid, Madhurima? Like he said, it's definitely surreal. This is the first time I'm seeing myself on the big screen, and again, we dream of this. छोटे शहरों से आते हैं and एक सपना रहता है कि कभी हम भी देखेंगे अपने आप को, and finally it's here. And like I said, like I'm also seeing this for the first time, so it's definitely it's happiness, excitement, nervousness, all of it put together. And I'm just trying to soak this in. Thank you everybody for coming here and acknowledging this, taking time out. And I think I'm still living the dream with everybody. Thank you for trusting in me, sir, and the entire team. This is definitely a very, very surreal moment. And my friends who showed up for me. So thank you so much. How sweet. Do you want somebody to pinch you and believe that this is happening? Okay, I can do that. But I think I'll give the honors to Jatin Sarna. He does it better. And I think जब तक मीडिया कॉन्फिडेंस नहीं आती ना, तब तक यकीन नहीं होता कि हमारी पिक्चर जो है वो हो रही है ना. So जोरदार तालियां for our media once again. इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से और कैप्चर करना. Ladies and gentlemen, can we have the man himself, the hero who's been trending across Netflix, Amazon? जोरदार तालियां for my brother Jatin Sarna, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां होनी चाहिए. फिल्म में जितना पैसा मिला सब इन्होंने अपने सूट पे लगा दिया और इंसेंटिव पे शेड्स लिए हैं. शेड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, माशाल्लाह. या मुझे पता है तू लोगों के शेड्स चुरा लेता है, इसलिए नहीं भाई, मैंने बिल्कुल नहीं चुराया, मैं अपने लेके आया हूँ. पिछली सात्विक भाई के हैं वो. देखा. But jokes apart, you're looking dapper, and I think always good to see my brother finally making a debut on 70mm celluloid. So can we please have some round of applause for the man, the hero himself? Thank you so much. What a journey, Jatin, you've had. हमने आपकी जर्नी देखी है. It's been inspiring. इतने सालों से आप अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं और हमें पता है सर कि जब जतिन इस प्रोजेक्ट में है तो पिक्चर जो है वो बहुत ताबड़तोड़ होने वाली है. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, इस विश्वास के लिए. और ज़्यादा कहने के लिए है नहीं, क्योंकि बचपन से इसकी तैयारी की है कि अवार्ड लूँगा या मीडिया के सामने आऊँगा तो ये बोलूँगा वो बोलूँगा. लेकिन आज बिल्कुल भी वो हिम्मत वैसे आ नहीं रही है, क्योंकि जब फाइनली मैंने भी आज ही देखा ट्रेलर आपके साथ, और जब ट्रेलर देखा तो एहसास हुआ कि लड़के में बात तो है. क्या बात, क्या बात. इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है. तो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक विकास, पूजा, विपुल, रीत फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, और मेरे को स्टार्स प्रणय, मधु और वो बाकी कास्ट जो कैमरे के पीछे भी थी, आगे भी थी, डीओपी से लेके म्यूजिक से लेकर एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम और यहाँ आने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए. थैंक यू सो मच. क्या बात है. और बहुत सारे अंदरूनी सवाल जो हैं वो जतिन भाई से पूछूंगा जो मुझे पता चले रिसोर्सेज से कि फिल्म में ऐसा ऐसा भी हुआ था. रीत ने मुझे नहीं बताया कुछ भी ऐसा. प्रोड्यूसर, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी हैव द स्टिल स्टार कास्ट. इट्स टाइम फॉर मी टू वेलकम ऑन स्टेज द मैन हिमसेल्फ, जिन्होंने इस फिल्म को जान दी है, जिन्होंने was given soul, love and everything he could to this film. Can we please have a round of applause for the captain of the ship, ladies and gentlemen, Vikas Arora. Sir, this is your day. Warm welcome, sir. Your pleasure. It's an honor. Please, जोरदार तालियां for the man, 20 साल का ये vision, 20 साल editing को देने के बाद, finally he decides to move ahead as captain of the ship, as the director, as a writer, director, editor of the film. And of course, sir, आप editing नहीं करते तो film के साथ बहुत नाइंसाफी होती. 20 साल के editing career के साथ बहुत नाइंसाफी होती. But sir, I'm sure it is, plethora of emotions all across, and we can understand, how emotional, overwhelming, and nostalgic it is, to finally see your work on celluloid 70mm. Let's hear from the horse's mouth. How are you feeling, sir?
हेलो। थैंक यू दोस्तों, सबसे पहले टाइम निकाल के यहाँ पर आने के लिए और हम सबको इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और बहुत कुछ सोचा था मैंने, लेकिन अभी सब ब्लैंक हो चुका है। मतलब मैंने ये टीजर ट्रेलर 1 करोड़ बार देखा है, लेकिन आज मुझे ये एक नया एक ऐसा फील दे रहा है जैसे आप लोग कह रहे हो कि आपने मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहली बार देखा। इतनी बड़ी स्क्रीन पे तो देखा है पहली बार। सो यार अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं अंदर से कूद रहा हूँ। वो कूद आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, शब्द नहीं है यार। थैंक यू I think we can absolutely hear his heart out. You know, the heartbeats when a vision of 20 years you see on the 70 mm. I think it's a dream for any artist, any filmmaker, and of course it gives us all goosebumps. बहुत सारे सवाल हैं, मैं चाहता हूँ कि सर फिलहाल grasp कर लें और you know, you can get back to the zone. But ladies and gentlemen, filmmakers हैं, stellar star cast है, मगर producers होंगे तभी तो एक फिल्म बन पाएगी, और स्पेशली जब प्रोड्यूसर्स जो है हमारे फाइनेंस बैकड्रॉप से हैं. So can we have a round of applause, ladies and gentlemen, our very gorgeous producer, Pooja Arora, ladies and gentlemen. Warm welcome, and along with Pooja, can we have the stunner Reeth Arora, a co-producer, ladies and gentlemen. And our stunner producers are here, but Vipul Dhawan, who's also a producer, unfortunately he could not come because of some circumstances. And of course, we have the stellar star cast, we have the producers. So let me ask Reeth first, and then Pooja. You come from the finance background, right? All the way from London. And जब आपको प्रोड्यूसर बनाया गया एज अ को प्रोड्यूसर, तो मतलब आपके लिए बहुत इजी रहा होगा ना पैसे वैसे मैनेज करना, दो इट्स योर फर्स्ट फिल्म, राइट? एंड जतिन एंड प्रणय एंड मधुरिमा के साथ टैंट्रम्स भी नहीं है, वेरी सिंपल दाल चावल गाय विद सम लिटिल टॉनिक वाटर. जतिन भाई का टॉनिक वाला नींबू पानी यार. सेकंड वाली बात बिल्कुल सही थी, कोई टैंट्रम्स नहीं है इनके. पर प्रोड्यूस करना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इजी तो बिल्कुल नहीं था. हमारी पहली फिल्म है, हम हर स्टेप में हम भी सीख रहे हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है. गलतियाँ की, सुधारी, और आज यहाँ तक पहुँच गए. बजट ओवर गया है पर पहुँच गए. पर पहुँच गए, और इट इज़ अ सरियल मोमेंट. आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. I think जब इतने सारे projects पहली बार होते हैं, I think the magic is definitely created. And our very own, the OG producer, Pooja Arora, ladies and gentlemen. Vipul ji could not make it, unfortunately, but Pooja, you come from a education background, finance, मैं कहूँगा rather maths professor, to now a film OG producer. So calculation करना तो मतलब बाएं हाथ का खेल है. सारी एक्सेल शीट्स मैंने मैनेज की है. How does it feel, to be a producer, coming all the way from education background, from being maths professor to a producer of such a amazing film? Yeah, it feels one common word coming all the way, surreal. And it's really overwhelming, but in a positive way. And एक बात बताऊं? Like I grew up with, this is my brother, huh? Oh. So I grew up with him. एंड बचपन में हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि बड़ों के फिल्म बनाएंगे. क्या बात है. आई वॉज अ नर्ड, मैं पढ़ाई में रहती थी, बट इनका असर तो था ही, तो क्रिएटिव कीड़ा था ही शुरू से. तो जैसे ही मतलब सऊदी शिफ्ट हुए, फिर जैसे ही मौका मिला, सो वी स्टार्टेड. जब बचपन में आपने मजाक किया था, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ ने तथास्तु कह दिया था. हाँ, 1 करोड़ का उधार भी है इनके. 1 करोड़. वो बाकी है. नहीं सर, आई थिंक वो 6 मार्च को चुका देंगे, मुझे लगता है, सूद समेत. आई एम श्योर द ट्रेलर लुक्स सो फैंटास्टिक. And one more thing I would like to say, thank you so much everybody. Like it is really just cannot be expressed in words how happy to see people coming and celebrating ना जाने कौन आ गया with us. Thank you so much. क्या बात है. I think we can undoubtedly
feel all the plethora of emotions coming from the Arora family and coming all the way from Saudi Arabia, you know, and uske baad Bombay mein aana jana, and you from London and Vikas ji. So how did you guys manage, Vikas ji, if you want to answer? We keep traveling all Acha. the time. You keep traveling. Very nice. All right, Vikas sir. Yes, Jatin, Madhurima and Pranay, I have a lot of questions. नहीं सर, आपको नहीं सर जाने देंगे. You will be the highlight throughout. Of course, उसके बाद हम चाहेंगे मीडिया से भी हम कुछ Q&A करें. Our members of media fraternity, our journalists are here. फिल्म की एक और अदाकारा मैं चाहता हूँ, प्रीति जी प्लीज आप मंच पे आ जाए. जोरदार तालियों के साथ किसी भी कलाकार को मैं चाहूंगा कि मंच पे आमंत्रित किया जाए. अभी बिल्कुल फ्रेश साड़ी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए, बट यू नो जरूरी है ये बहुत. एंड जी बिल्कुल. सो जतिन भाई, आप स्टेज पे हो, आप फिल्म में हो तो लगता है यार ये तो देखनी है मैंने यार. एंड आई रियली लव वन ऑफ द, यू नो, ऑफ कोर्स वी सीन सेक्रेड गेम्स, वी लव्ड इट. डार्क 7 व्हाइट, आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू. डायरेक्टर और उसके मेकर्स. हाँ, अच्छा मेकर सात्विक भाई आए हैं. अरे वाह, सात्विक इज हियर, स्नेहिल इज राइट हियर, यू नो. And yes, and you know, such a cult film, you know, that it is you being part of this film now. So I think first of all, जोरदार तालियां इनकी जर्नी के लिए यार. ऐसे दिग्गजों ने प्रूव किया है कि सपने सच होते हैं, साकार होते हैं. I think bagging your first project, I remember आपको 2 साल लगे थे Sacred Games to then, you know, a good project, and करते now finally you're seeing yourself on 70 mm. जैसे आपने बताया कि बहुत you know, overwhelming होता है, यकीन नहीं होता है. बट ऐसी फिल्म का जब आप पार्ट होते हैं और पहले दिन शूट पे आप बीमार हो जाते हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि वो क्या हो गया था. ये खुशी के मारे बीमार हो गए थे? मधुरिमा की जो हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि सारे जवाब वहीं से मिलेंगे मुझे. ये तो आई 2 दिन लेट थी, 2-3 दिन लेट आई थी. नहीं, वो हुआ ये था कि हम लोग ये पहले से रिकी करके और सब करके अपना पहुंच गए थे शूट से पहले 2-3 दिन. तो मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ 2 दिन पहले आराम से, जरा क्लाइमेट के साथ थोड़ा सा मिल जाऊंगा, क्या है, कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि. तो मैं इनके कमरे में गया और वहाँ पे खिड़की खोली तो सामने पूरा भीमताल ऐसे दिख रहा है, और ये और मैं बैठे हुए थे हम दोनों. मैं खिड़की विड़की खोल के ऐसे बाहर देख रहा हूँ. अरे मुझे कह भी रहे हैं यार शूट है 2 दिन में तो खिड़की विड़की बंद कर लो तुम. अरे मैंने कहा कोई नहीं, टॉनिक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम बैठ गए. मैं सही बोल रहा था. तो मैं बाहर देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फील लेने के लिए मैं बड़ी देर तक बैठा रहा. खैर वो रात गुजरी. उसके अगले दिन मैं जहाँ पे मुझे शिफ्ट किया गया था वो थोड़ा सा 2-1 किलोमीटर ऊपर था इनके होटल से. तो शिफ्ट किया नहीं गया था, आपकी चॉइस थी. बात अगर प्रोडक्शन पे आएगी ना तो अरोड़ा फैमिली सामने आ जाएगी. मैं ऊपर गया, वहां से नजारा और अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था भीमताल का. तो वहां पे ईपी रुका हुआ था. ईपी था ना अपना वो. तो मैंने उसको बोला मैडम बेटे ये आपके लिए नहीं, ये एक्टर के लिए. तो मैंने पहले तो उसे वहां से भगाया. तो खैर मैं वहां पे अपना शिफ्ट हुआ तो वहां से बहुत नज़ारे अच्छे थे. शाम में ऐसे ही लाइव करते करते मैं थोड़ा और ऊपर चला गया. कोहरा वोहरा हो गया, ठंड वंड हो गई बढ़िया से, और मुझे एकदम से लगा कि बदन में क्या बोलते सिहरन सी होने लगी है. और मैं वापस आ ही रहा था गाड़ी से नीचे इनके होटल में, और मुझे लगा कि भाई कांड हो गया. और अगले दिन शूट था और शूट में मैं पहुंचा और मुझे करीबन 102-101 कुछ ऐसे बुखार चढ़ चुका था. वो तो शुक्र है कि और एक्टर साथ में नहीं थे जिनके साथ सीन थे. मेरे ही सोलो सीन इन्होंने शूट करने थे और बहुत बुरा हाल हो गया. डॉक्टर वगैरह सेट पे ही रहते थे. तो मैंने बोलता था कि भाई अब आप मेरे को, मैं बेड पे लेटा रहता था और ये शॉट लगाते थे. मैंने बोलता था तुम कर लो, मुझे सिर्फ बता देना क्या क्या करना, मैं आके शूट कर दूंगा, मतलब शॉट दे दूंगा. तो वैसे वो सब सिलसिला हुआ वहां पे. तो ये पंगे ले लिए थे मैंने पहले 2 दिन में. नहीं, बट वेरी नाइस. ऐसा हमें बिल्कुल भी ट्रेलर में देख के लगा नहीं है कि आई थिंक कहीं भी आप बीमार पड़े थे या कुछ हुआ था. बट हो सकता है उसकी ट्रेजेडी मेरी छोटी सी ट्रेजेडी के साथ मिक्स हो गई तो उसका रिजल्ट वहां पे आ गया. okay. बाकी विकास सर की आंखों से लग रहा है ये तो मेरी रीडिंग का भी कमाल है. मेथड एक्टिंग. मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जी. जब इनको ये बुखार था तो हमने वही शॉट्स लिए जिसमें इनको बीमार दिखना था. क्या बात है. एडिटर्स टॉकिंग नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन. जिसमें इनको दुखी दिखना था. ऐसे शॉट्स जिनमें इनका चेहरा उतरा हुआ चाहिए था, हमने वही शॉट्स. बकायदा डॉक्टर को मना कर दिया आने मत देना इसे और बीमार करो इसे. I think जोरदार तालियां, because this is the reason, you know, when an editor turns a director,
they know the depth, the technicalities, and ज़्यादा तामझाम में 50 शॉट नहीं लेंगे, उनको पता है कि 2 शॉट में काम हो सकता है, तो exactly that's the beauty, you know, और इसीलिए अच्छे प्रोड्यूसर्स भी बनते हैं, है ना, because प्रोडक्शन का बहुत पैसा बचता है. Jokes apart, moving ahead, Madhurima, because ये फिल्म जो है ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं बता सकते, but it revolves around relationships, है ना, और समय के साथ relationships की definition, language change हो रही है, dating apps आ चुकी हैं, प्यार मोहब्बत, मैं तो कहता हूँ as a millennial जिन्होंने शादियाँ कर ली हैं वो सही हैं, जो single हैं अब बहुत मुश्किल हो चुका है. So what do you have to say about the love scenario in 2026, or shall I say the dating scenario in 2026? I think 2026 mein definitely everybody is just trying to figure it out because millennials, I'm also a millennial. I5. And Gen Z is also trying to figure it out because Gen Z. in a time जहाँ पे मतलब it's all about swipe culture and thank you next culture and moving on to the next person without even having any emotion left or thinking about or longing for the person. I think it's become very, very clinical in today's times with regards to relationships. I think from the time where we came from, love was treasured, and even from our fathers, our parents, grandparents generation was treasured. उसकी अहमियत पता होती थी. तो I think इस फिल्म के जरिए हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं that somehow in every generation it will always be the most precious feeling. So it's most important to protect it and treasure it and nurture it. So even though times are tough, but I think there's still hope. So that means you're also single. Yeah. Guys, I'm sure she's gonna get a lot of rishtas right after this statement. Okay. Moving on, Pranay, you know, मुझे जानने को मिला कि you are playing, very interesting guys, young Osho. You know, all those who believe in Osho, they I'm sure gonna get connected to this. Osho in 30s. तो सर पहली बात 30s नहीं 20s है ना? in 20s. Late 20s. मतलब भगवान से तो डरो कम से कम. Sorry, you were asking. So, you know, there's a saying that, you know, when you're playing Osho, so I think it comes with a lot of responsibility. Of course, it's what exactly was that, you know, when director narrated you that it is going to be on the lines of young Osho in 20s or 30s, as you say. For the character. So I play Veer in the film. And Vikas sir ने मुझे although पूरा brief दिया था, but he ended the entire brief by saying that I want you to basically think of this character as someone like Osho. अगर वो अपने spiritual path पे नहीं जाते तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी कैसी होती, क्या होती, उनके नज़रिए क्या होते, एक modern setup में वो कैसे जीते, which was a very interesting thought because I had never looked at a character or a character study from that lens. So I felt okay, this would be interesting to play a character like that. And I think usi ke baad I was like, yes, this is a great opportunity for me to explore a character like that and bring him on board. फिर ये character film में क्या क्या करता है वो आप 6 मार्च को देखेंगे. Very nice, sir. Very Osho of him. क्या बात है. Osho अगर spiritual नहीं होता, I think the seed of thought needs a round of applause. विकास सर क्या बात है. मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें. Please. Osho without spirituality. Wow. So यार ये मतलब एक रेफरेंस है, हम लोग रेफरेंस देते हैं ताकि हम समझा पाए एक्टर को कि हम क्या सोच रहे हैं. ओके, आवाज़ आ रही है सर? सो एक रेफरेंस है और मुझे इससे आसान कोई कुछ और रेफरेंस दिखा नहीं, सो मैंने ओशो का नाम लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसके लिए जो एक टिपिकल सोशल वैल्यूज़ हैं वो उसके लिए उतनी वैल्यू नहीं करती. उसके लिए वैल्यू करता है आज का दिन, अभी का समय, वो इस समय कितना खुश है, Right. वो आज क्या क्या करने वाला है, वो बेसिकली उस पर ध्यान देता है. वो बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करता है. Right. जिंदगी को लेके बहुत सीरियस नहीं है. सीरियस है लेकिन आज को लेके है, पूरी जिंदगी को लेके सीरियस नहीं है. सो वो आज भी जीने वाला बंदा है. तो दैट्स वाई मैंने इनको एक रेफरेंस दिया और बहुत अच्छे से आप देखोगे जब फिल्म ट्रेलर और टीजर से भी आपको अंदाजा हो गया होगा. बट वीर मतलब
ओशो शायद होते तो कहते ये या सर ओशो का पता नहीं, अगर शीला जी इनको देखने के बाद कहेंगे वाइल्ड वाइल्ड प्रणय मतलब इन्होंने मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्रणय ने वीर के कैरेक्टर को जो साइलेंस दिया है, जो स्टे दिया है, वो जैसा मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। क्या बात है सर, आई थिंक ये अपना में बहुत बड़ी बात है सर। ऐसे में ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज आपका पहला प्रोजेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश करना रहता है, यू नो प्रोडक्शन हाउसेज, एंड ऑफ कोर्स there's a lot of pressure on the very first director, and I think all the directors, makers will totally agree to it. But you know, helming a film with not really a new star cast, but again not the big yeah. हिंदी हाँ, सो सर मैं सवाल मेरा यही है कि यू नो जब एक पहला प्रोजेक्ट होता है तो कई बार यू नो सराउंडिंग से प्रेशर आता है कि सर बड़े स्टार्स को ले सकते हैं तो ये होगा तो फिल्म बिकेगी, बहुत सारे प्रेशर्स एज अ निर्माता, एज अ फिल्म मेकर, यू नो एक फिल्म मेकर के माइंड में रहते हैं। पर ऐसे में आपने एक रिस्क लिया, ऑफ कोर्स यू नो हमने इन चारों को देखा है पहले, बट नॉट लाइक द ए लिस्टर्स। सो ऐसे में जब आपको कहा गया कि सर बड़े स्टार्स को ले सकते हैं, तब आपका रिएक्शन क्या था? एंड व्हाई जतिन, व्हाई मधुरिमा एंड व्हाई प्रणय? डिप्लोमेटिक आंसर दूं या दिल वाला? बजट फ्रेंड। बस सर जनता 6 मार्च को थिएटर्स में आ जाए, वही जवाब। दिल वाली बात यह है कि हम सन की हैं। क्या बात है, आई थिंक एवरी आर्टिस्ट विल एग्री टू दिस, एवरी आर्टिस्ट। दिल वाली बात है कि हम सन की हैं। दिल में जो आया वही मुझे लगता है कि मैंने किया है, और बहुत जैसे एक वीर का कैरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा नफा नुकसान सोचता है, वो जिंदगी सोचता है, तो मैंने भी जिंदगी सोची है, और मैंने कोशिश की है इस फिल्म को एक लाइफ देने की, एक जिंदगी देने की। शायद आप तक वो पहुंच पाए वाइब्रेशन, शायद आप उसे महसूस कर पाओ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। एंड आई रियली होप सर कि आपकी इस फिल्म से जो ट्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं वो भी चेंज हो, एंड वी कैन आल्सो सी दैट यू नो ट्रेंड्स इन द फिल्म इंडस्ट्री आर आल्सो काइंड ऑफ चेंजिंग विद सच यंग मेकर्स, यू नो ब्रेकिंग द मोनोटनी एंड यू नो हैविंग आवर ओन पाथ्स। ऑन दैट नोट सर, जब आप डायरेक्टर हैं, आप इस फिल्म के राइटर भी हैं और एडिटर भी हैं, तो जब राइटर एक फिल्म लिखता है तो कहीं ना कहीं अपनी छवि, अपनी जो पर्सनल लाइफ होता है उसके भी कुछ किस्से शेयर करता है, और ये लव ट्रायंगल है, तो सर आपने इसमें अपनी लाइफ से क्या क्या निकाल के डाला है, अगर आप बताना चाहेंगे तो? देखिए, पैसे तो वही खर्च होते हैं जो हमारे बैंक में है, तो वही शेयर होगा जो हमारा एक्सपीरियंस राइट। सो या मैं और मेरा दोस्त है अमल सिंह, वो अभी यहाँ पर है नहीं आ पाया, तो हम लोगों ने मिलकर फिल्म लिखी है। और हाँ, हम लोगों ने ऑब्वियसली अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आते ही हैं जब हम कुछ भी लिखेंगे, बनाएंगे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो आपके अपने एक्सपीरियंसेस उसमें आते ही आते हैं। सो या इसमें भी आया, और जो मुझे जानने वाले लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली है, वो तो ये फिल्म देख के समझ जाएगी कि कौन कौन से एक्सपीरियंसेस इसमें डाले हैं। ठीक है, और बाकी मैं चाहता हूं कि आप सब फिल्म को फिल्म की तरह देखें। मेरे एक्सपीरियंसेस तो ठीक है, आप सबके एक्सपीरियंसेस ही मेरे एक्सपीरियंस, हम लोग एक जैसी जिंदगी ही जीते हैं लगभग, हमारे रिश्ते एक ही जैसे होते हैं, बहुत रिलेटेबल होती हैं चीजें। सो या ये फिल्म भी हाँ ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से लिखी है, बट ये आप सबके एक्सपीरियंस है। सर आपके एक्सपीरियंसेस भी बैठे हैं यहाँ पे कहीं? ओके, या एंड जतिन, मधुरिमा, बिफोर वी हैव द मीडिया Q&A, कुछ ऐसे किस्से शेयर करना चाहेंगे? एंड जब ये किरदार आपको दिया गया था, व्हेन यू नो इट वाज नरेटेड टू यू, व्हाट वाज इन योर माइंड? बिकॉज ये मुझे लगता है कि अब तक का आपका बहुत ही एक अलग तरह का किरदार है जतिन, सो व्हाट डू यू हैव टू से? माइक। आई जस्ट वांट टू थैंक विजय, विकास भाई और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है विजय। तो विजय जी ने इनको रिकमेंड किया था जब ये स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार उसको ट्राई कर लो। तो इनका भी यही सवाल होगा, यार वो तो बड़ा खूंखार और वो सब रोल करता है, तो उसको कैसे मैं लवर बॉय कैसे बना दूं? तो विजय जी ने क्या कहा था आपको, वो बता दो सबको। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब होने वाला है। ऑन द स्पॉट लाइव राइटिंग हो रही है। यार विजय ने एक बात बोली थी, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी काफी टाइम पहले, तो उसमें विजय लीड थे। तो विजय खुद बोलते थे, यार मैं इस कैरेक्टर में ना फिट नहीं हूँ, मैं ये रोमांटिक कैरेक्टर और मैं रोमांटिक कहीं से लगता नहीं हूँ, मैं लगता हूँ गुंडा, मुझे क्यों दे रहा है ये? तो मैंने उसको एक बात बोली थी, मैंने क्यों गुंडे क्या प्यार नहीं कर सकते? गुंडों के पास क्या दिल नहीं होता है? सो वो
गुंडा गुंडा वाला जो उसकी पर्सनालिटी थी वो उसमें से रिमूव कर दी, जैसे ही रिमूव करी तो वो आप शॉर्ट फिल्म कभी देखिएगा यूट्यूब क्या बात है। वो कितना लवेबल है। मुझे भी पोस्टर निकलने के बाद मुझे लोगों ने यही बोला कि बंटी टीना के साथ क्या कर रही है, सबने यही बोला मुझे। सो गुंडा भी कर सकता है। गुंडा बिल्कुल प्यार कर सकता है। खैर मैंने कभी अपने आप को वैसे कैटेगराइज किया नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत क्या सवाल क्या था यार, सवाल ये था कि ये जो किरदार आपको दिया गया था, आपने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे कि आपने पोर्ट्रे किया गुंडा या बंटी या डार्क सेवन वाइट और बहुत सारे तमाम किरदार, तो ये बहुत डिफरेंट था। एज अ रोमांटिक बॉय मुझे लगता है कि शायद ये आपका पहला एक ऐसा जॉनरा है दैट यू प्लेइंग। बेसिकली अथॉरिटेटिव रोल्स होते हैं वो yeah. भी है। तो इसमें यही खास बात थी कि वो बहुत सबमिसिव है ये कैरेक्टर, और मैं कभी उस तरह से अपने आप को मतलब कई मौके ऐसे रहे हैं जब आप वल्नरेबल होते हो, बट ये इस कैरेक्टर की एक अपनी तासीर थी जो मुझे बार बार खींच रही थी। और उस सबके ऊपर जिस तरह से विकास से जब मैं मिला और विकास ने मुझे नरेट करी ये स्क्रिप्ट और इसकी हंसी जो है विकास की, मैं वहीं पर सोल्ड आउट हो गया। मैंने कहा यार मैं कर रहा हूँ फिल्म आपके साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हंसी में ऐसा आई मीन जैसे स्माइल करते हैं सर, या मतलब जैसे वो स्माइल करते हैं वाकई, मतलब बहुत जिंदा दिल आदमी है विकास। आप इससे मिलते हैं, आप इससे रोज बात करें, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं थक गया हूँ बात करके या मुझे कुछ नहीं है, क्यों फोन कर रहा है। हमेशा बात का सुर एकदम सॉफ्ट और एकदम ऐसा एनर्जी कि आपका मन करता है बार बार उस बंदे से बात करने का। तो हमको कभी बात थोड़ी इधर उधर करनी हो तो हम पूछते हैं मौसम कैसा है, तो इसका मतलब कोड वर्ड है हमारा क्या, बात को यहीं पर खत्म। ओके वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया। मौसम सर, मौसम आगे बढ़े मौसम पूछ रहे हैं, बट सर ये कमाल की बात है, भगवान सबको ऐसे एक्टर्स और सबको ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स दे और ऐसे दोस्त भी दे जो कहें कि ये गुंडे का रोल तू कर ले, मतलब ये हीरो का रोल तू कर ले, गुंडा लगता है तो क्या हुआ। हम तो सर हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए रोल होता भी है तो भी कहते हैं तू नहीं करेगा कोई और ही करेगा। वो जो गुंडे वाली बात थी वो एक दूसरी शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड मैं बोल रहा था। अगर मैं जतिन पाजी की बात करूं, मैंने जतिन पाजी बुलाता हूं, तो अगर मैं जतिन पाजी की बात करूं तो ये जो कैरेक्टर था ना, ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, सेल्फ मेड बंदा है, और वो एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके चलता है जैसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, फिर एक अच्छी सी लड़की देखी, शादी करी, घर खरीदा, बच्चे हुए, अपनी नौकरी कर रहे हैं, एक सेट पैटर्न को फॉलो करता है, उसको वही पता है और उसको पता है कि यही प्यार होता है, लेकिन प्यार ये नहीं होता बॉस। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। आई थिंक बहुत ही प्यारी स्टोरी, बहुत ही प्यार से बनाई है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर स्टेलर स्टार कास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जतिन सरना, मधुरिमा रॉय, प्रणय पचौरी, our makers, जोरदार तालियां, 20 years of dream, Vikas Arora ji, ladies and gentlemen, and our producers Reet Arora and Pooja Arora, and Vikas, the one who's not here. I think now I move on to our media for a quick Q&A before we have, before we move ahead. Sohail bhai in the house. Okay, hello. I mean, how are you going to share in the profit? Because भाई है ना, इन्वेस्टमेंट पूरा तुमने लगाया। सब कुछ सबका ही है, सब कुछ सबका ही है। सब कुछ सबका है। Okay, have you got some profit on the table? This is your first film. अभी 6 मार्च के बाद ही होगा वो तो। Okay, how much have you learned, from your brother about production? I have Because he is a creative person, and a creative person can never be involved in money matters. So He is very how capable. rigid were you while spending money or fulfilling his demands? How reachable I am staying in India for last 2 years with him. No, not that way. Yeah. I meant कि पैसे देने में कितनी आप खुला खर्च करते थे, उनकी डिमांड ज्यादा होगी ना, क्योंकि वो क्रिएटिव बंदा है। For himself or for the production? For the production. और the production actually हम दोनों का एक ही विजन था, हम सबका एक्चुअली, कि हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सिनेमैटिक ग्राम और इंटेग्रिटी पे पूरा मतलब उस पे वैल्यू करना है। सो उसमें कभी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। Okay. इसीलिए हम ओवर बजट गए। Okay. Would you like to reveal the budget? I think I'm not allowed to. I thought you are new, so you'll say host Pooja. Pranay, I wanted to ask 1000 crore. you. Pranay, I wanted to ask you. Do you know about Osho? Osho just believed in living for today. Yeah.
and he believed in human to human relationship. For him, he was not very social animal. He was not very. Social animal. I mean, he never abided by the society rules and norms. You know. Right. What do you have to say about that? How much do you know about it? And how much did directors ask you to follow him? I mean, you are right. However you've described Osho, social animal to the, I think, because बहुत बड़ा आश्रम है उनका पुणे में. And, you know, he had a massive following. We've all seen the documentary also, Wild Wild West, which was very informative about his life. Wild Wild Country, right? Sorry. So, having said that, my character per se is someone, like I just said, he is living a life which is probably fantasized by a lot of men, women in general in our society. He's not bound to any norms. पहाड़ों में रह रहा है, कैफे चलाता है, you know, underprivileged children को पढ़ा रहा है, and he's very open about ideologies. He's not binding himself to just one way of life. He's someone who's like a floater. He's going as life comes to him. So, having said that, there were a lot of similarities which I picked up upon, you know, relating to Osho that way. And एक trivia अगर दूँ तो जो हमारे director साहब हैं, he's a lot like my character. So मैंने इनका काफी इंटरव्यू लिया था, इनसे बात कर रही थी समझने के लिए कि इनके दिमाग में लाइफ के टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव क्या है, what are his reactions. Like Jatin bhai a while back said that, you know, he's very, no matter what is going on inside of him, he's very soft spoken, वो कभी दिखने नहीं देते, and that takes a lot of maturity to be able to handle your emotions. And मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि बोलने के लिए ओशो है, but I'm probably portraying him on screen. But ना सर कह रहे इतना सच नहीं बोलना था बेटा. No, but yeah, I guess that was my inspiration. So reading up about Osho or knowing everything about him, character study, spending time with him. So as an actor, you tend to pick up a lot from your observations and people around you, and then it's like a dish you present on screen. Jatin, congratulations. You nailed it up. You nailed it up. Thank you, ma'am. Thank you so much. You look as romantic as ever on the screen, no matter whatever the host asked you. You don't look like a gunda at all. You are so presentable, so nice. And all the romantic scenes, especially the one when you're carrying Madhumitra, you know, on your this thing. मैं पूछने वाली थी कि बीमार थे तो बहुत अच्छे से उठा ले, लेकिन उन्होंने पोल खोल दी कि बीमार थे तो बीमारी वाली सीन ली थी. तो what do you have to say about that scene? जो भी विटामिन की कमी थी वो उसने आके पूरी कर दी थी ना मधु ने, तो फिर जान आ गई थी कि हाँ कोई दिख रहा है, रोमांस करने के लिए है कोई. सो यही मेरा विटामिन डी था उस वक्त. विटामिन आर थी वहाँ पे, है आर, विटामिन आर रोमांस. विटामिन आर कह सकते हैं आप. यस. And congratulations to all three of you. You all are beginning. You are doing the first debut film, and I don't think audiences hero worship now. You know, they come for the content. What do you all have to say, all three of you? We agree to this, ma'am. Definitely, हमारा focus भी उसी पे था, rather than this कि इसको अच्छा दिखाना है, उसको बुरा दिखाना है, ये करना है, वो करना है. Focus सारा हमारी script पे था, हमारे जो कंटेंट है उस पे था. तो हमने आई थिंक उसके साथ जस्टिस किया है, और वो विकास की क्लैरिटी में था, क्योंकि हमने वर्कशॉप भी करी थी. तो हम जब यहाँ से गए थे मुंबई से उत्तराखंड, तो हम प्रिपेयर होके गए थे उन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज वी हैड वेरी लेस टाइम टू शूट, और उसमें वी कांट अफोर्ड टू मिस ए डे. कुछ दिन आए भी जब बारिश अचानक से होने लगी बहुत तेज़, और कुछ नहीं था करने को, तो हमें अफसोस भी होता था. बट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि स्क्रिप्ट की जो डिमांड है और जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल आज के लिए बहुत ज़रूरी स्क्रिप्ट है. और ये जतिन भाई के रोमांस के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड. फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक मॉडर्न टेक है लव
इमोशन रिलेशनशिप के बारे में, जो कि आज बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की फास्ट ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, जहाँ पे एज दी को स्टार मेरी को एक्टर ने भी कहा स्वाइप कल्चर है, तो उसमें कितना ज़रूरी है टू जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सन रिलेशनशिप, और उसी को डील करती हुई फिल्म है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम कितना भागते हैं, दौड़ते हैं, और जब उसको पा लेते हैं तो फिर क्यों रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहाँ से ये फिल्म उत्पन्न होती है, वहाँ से इसका बीज है कि वो जो आराम आ जाता है, और फिर जब वही चीज़ जिसको इतनी शिद्दत, इतने जद्दोजहद से प्राप्त किया, पाया, वो हाथ से निकल जाती है, तो फिर वो तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। क्यों? सो वाई नॉट एट द फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट हम लोग उसको अच्छे से संजो के क्यों नहीं रखते। तो प्यार बहुत एक अहम रोल प्ले करती है हमारी सबकी ज़िंदगी में, ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के, बल्कि हर रिलेशनशिप में। तो जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, वो इमोशंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसी को डील करती है फिल्म न जाने कौन आ गया, इन सिनेमाज नियर यू ऑन 6th of March। मैं बहुत छोटा हूँ उस बारे में, प्यार के बारे में कुछ भी कहना। प्यार शब्द वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मेरे को तो नहीं पता कि उसको एक दो शब्द या एक लाइन में कैसे उसको कर दूँ, क्योंकि वो बहुत अलग है। मतलब वो एक फीलिंग है जो जब आपको आ जाती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्यार है। अदरवाइज़ तो उसके बारे में बात करते रहो, फिलॉसफी झाड़ते रहो, उससे कुछ नहीं है। सो मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट आई थिंक प्यार शायद एक्सेप्टेंस है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर थोड़ा सा उसको कुछ उसके बारे में कुछ कह सकूँ तो क्यों नहीं हुआ, किसको नहीं होता है, हर किसी को होता है। हुआ, बहुत बार हुआ, टूट के हुआ, और कभी कभी बिखर भी गए, तो संभलते रहे और आगे बढ़ते रहे। क्योंकि किसी को बांध लेना, किसी को पकड़ के रखना, उसमें कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट लेट इट गो, जाने दो। अगर वो आपका है तो आएगा, नहीं है तो इट वॉजंट मेंट फॉर यू। बहुत खूबसूरत, बोथ प्रणय मधुरिमा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और अपने अपने जो भी उन्होंने पास्ट में काम किया, बहुत खूबसूरत काम किया है। और इस फिल्म में भी बहुत प्यारा काम है उनका, और सपोर्ट जो चाहिए थी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, वो मुझे इन दोनों से मिली। और इसीलिए वो केमिस्ट्री जब आप देखेंगे फिल्म में, तो वो देखने को मिलेगी अच्छे से आपको कि कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को तीनों एक्टर्स। इनफैक्ट और भी जो कास्ट है हमारी, सॉरी, लड़कियां क्या लड़के क्या, सब भी उसी उसमें है, जोन में। अब लेकिन वही है कि वो उसकी वजह क्या है, उसको भी हम क्वेश्चन करेंगे अपनी फिल्म में, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों होता है। जो हमारा एक वर्जन है, जो हमने समझा है, जो हमने कहना चाहा है, जो कि मोटा माटी आजकल जो है उसको लेके चलता है। बाकी डिच करना और वो सब, ज़माना बदल रहा है, हर कोई बेटर, बेस्ट और कुछ और नया, वही है ना। उसके चक्कर में हम जो है उसको भूल जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी वही सब मिलता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट। बेटर यही है कि जो है उसको पकड़ के रखो, संजो के रखो। बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, सब ये कहते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, कोई अलग बात नहीं कहूँगा, लेकिन दिल से कहना चाहता हूँ ईमानदारी से कि फिल्म बनाई है, और I can't see myself लेकिन I can't wait to see myself on screen। और शिद्दत से काम किया है। एक खूबसूरत फिल्म आज की भागती दौड़ती दुनिया में, जहाँ टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिनिटी और वायलेंस और ये वो सब की बात हो रही है, वहाँ थोड़ी देर रुक के, ठहर के एक चीज़ को रिलिश करने की जो हमारी कोशिश है, वो इस फिल्म के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वॉल्यूम। कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमने पहली बार एक दूसरे को बड़े पर्दे पे देखा है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इट। सरियल फीलिंग है, जैसे हमने वहाँ पे मेंशन किया। फिल्म आजकल के दौर के लिए बहुत
एक बड़ा मैसेज है दैट आप अपनी लाइफ को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ लाइफ का हिस्सा रहेंगी, तो वी हैव टू गो विद इट एंड लर्न टू लव ईच अदर डिस्पाइट आवर फ्लॉज, एंड या जस्ट टू स्प्रेड लव, दैट्स द मेन मोटिव ऑफ द फिल्म. वेल सेड. फिल्म का टाइटल है ना जाने कौन आ गया, एंड आई फील लाइक जैसे लाइफ में होता है कि आप अपनी पूरी लाइफ प्लान करते हैं थिंकिंग दैट इट विल गो अ पर्टिकुलर वे और अ डायरेक्शन, एंड लाइफ बीइंग लाइफ इट थ्रोज समथिंग एट यू एंड आपका पूरा ट्रैजेक्टरी बदल जाता है. सो ना जाने कौन आ गया इज प्रॉबली एंड पॉसिबली, बिकॉज मैं रिवील नहीं कर सकता ज़्यादा, बट अबाउट समवन, अबाउट अ पॉसिबिलिटी, अबाउट अ फीलिंग दैट क्रीप्स इन, एंड उस वजह से आपकी पूरी लाइफ जो आप सोचते हैं कि इस डायरेक्शन में जाने वाली है उथल पुथल हो जाती है. इट्स अ मॉडर्न टेक ऑन रिलेशनशिप्स, मॉडर्न टेक ऑन द आइडियोलॉजी बिहाइंड लव. मेरे लिए प्यार के मायने और मतलब कुछ और हो सकता है, इनके लिए कुछ और हो सकता है, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट द स्टोरी इज समवेयर लूजली टचिंग. सो ना जाने कौन आ गया is basically the anticipation of what this will do to our lives. Yeah. So that and is what comes next, you know, in your life. रियल लाइफ में कैरेक्टर से पूछ रहे हैं. मुझे लगता है जहाँ पे भी या जो भी इंसान आपको बहुत सेफ फील करा सकता है, कंफर्टेबल फील करा सकता है, एंड एक्सेप्ट्स यू फॉर हु यू आर, फॉर मी दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. मेरा वैसे नाम प्रणय है, एंड प्रणय संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है. तो आई फील लाइक जिस भी इंसान के साथ है या जो भी आपको इंसान महसूस कराता है, आपको उसकी बातें याद नहीं रहती, आपको बस ये याद रह जाता है हाउ दैट पर्सन मेड यू फील. सो फॉर मी whoever, I mean because I'm married, so if someone, your partner makes you feel safe, loved and accepted, for me that liberation is the meaning of love. मेरे लिए मैं कहूँगी, मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ कि उसका मतलब क्या है. मैं अपने मम्मी पापा में देखती हूँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स में देखती हूँ, मैं अपने से छोटे लोगों में देखती हूँ. आई थिंक प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो करती है एज यू ग्रो ओल्डर, उसका मतलब बदलता है, बट आई थिंक ओवर आर्चिंगली जब आप किसी के लिए अनकंडीशनल केयर, सेल्फलेसनेस दिखाते हो, एंड बुरे से बुरे वक्त में जब जिनका साथ दिखाते हो, आई थिंक वो भी एक फॉर्म ऑफ प्यार ही है. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो या I'd like to believe that for the rest of my life as well. मेरा सर, मैं वीर चौहान है मेरे कैरेक्टर का नाम फिल्म में. ये भीमताल में रहते हैं, कैफ़े चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और लिव्स इन द नाउ. ये ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, ना ज़्यादा पास्ट में रहते हैं. मैंने कुछ देर पहले ही बताया था दैट ही इज़ समवन हु प्रोबेबली, अगर ओशो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जाते, देन हाउ ही वुड हैव बीन इन हिज नॉर्मल डे टू डे लाइफ. आप देखेंगे पहाड़ों में भी इसलिए रहते हैं बिकॉज अंदर तो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, लेकिन शहरों में नहीं जाना, उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना. तो उस हिसाब से ये कैरेक्टर बहुत ही सुलझा हुआ है, लाइफ को उस बहुत सिंपल लेंस से देखता है, एंड इज़ ट्रू टू वट एवर ही इज़ फीलिंग, एंड दैट्स वॉट यू विल सी इन द फिल्म. तो मेरे कैरेक्टर का नाम टीना है. वो भी भीमताल में बेस्ड है. शी इज़ अ सिंपल गर्ल, शी इज़ एम्बिशियस, वो इन्फ्लुएंसर का काम करती हैं, वेरी क्रिएटिव, शी इज़ अ पेंटर. उसके बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है. शी पेंट्स, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी भी रूम में आके लाइट अप कर देती है रूम को, नॉट लाइक मी, but I think yeah, someone who walks into a room and lights up the whole room. I think she's the light of Kaushal's life as well, and even though her thought process is simple, and but she yet goes through her set of complexities in the journey of love, and how she meets her different side also, and the fact that not everyone is going through the same journey and the same path and the same qualities that you're supposed to have all your life. तो वो भी अपने आप को डिस्कवर ही कर रही है इस पूरे प्रोसेस में. कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो मंदिर वाला भी है. मैं इनफैक्ट पपी वाला बता सकता हूँ. हम लोग शूट कर रहे थे, एंड आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर. मुझे डॉग्स के लिए, उनके, और इवन फॉर कैट्स, इनफैक्ट फॉर एनिमल्स वोकल होना बहुत पसंद है फॉर देयर राइट्स. सो हम लोग जब ये फिल्म शूट कर रहे थे, एंड बिकॉज देवभूमि में शूट कर रहे थे, उत्तराखंड में, भीमताल में, तो
जनरली जहाँ भी शूट करते थे वहाँ या तो घोड़ा खाल मंदिर हो गया या कैंची धाम हो गया नीम करोली बाबा का. तो वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड टू बी देयर इन द सराउंडिंग एंड वाइल शूटिंग हमारे पास एक पपी आया था जस्ट आउट ऑफ नोवेयर जंगल में, और बहुत ही लेपर्ड इन्फेस्टेड एरिया था वो. तो उसके साथ पपी के साथ हमने वहाँ पे जो गांव वाले थे उनसे परमिशन लेके शूट तो करा, बट इट वाज एन अबैंडन्ड पप एंड मुझे अंदर अच्छा नहीं लगा कि बस छोड़ देना विल नॉट बी द राइट थिंग अगर आप इतने स्पिरिचुअल जगह पे हो, अच्छी जगह पे हो. तो मैंने उसको वहीं से अडॉप्ट कर लिया एंड उसका नाम मैंने लैला रखा है. शी लिव्स विद माई पेरेंट्स and is like another kid to them. Yeah. So she was one blessing to me that has happened, and I'm glad that she shares screen space with me in the film. And yeah, usko maine part of the film and she's your part life of the forever. film and family now, like a good memory. Yeah. So ab mere parents ke paas hai, and yeah, that's. आई थिंक मैं तो इनके लिए भी, हम सब के लिए इनफैक्ट कहना चाहूँगी कि हम लोग उत्तराखंड में ही शूट कर रहे थे, तो स्पिरिचुअल जगह तो है ही वो. हमारा एक सीन था वहाँ पे मंदिर में, तो मंदिर में जाके सीन तो हम शूट कर ही रहे थे, पर उसके बाद सब ने मिल के घोड़ा काल करके एक मंदिर है वहाँ पे सब लोग एकजुट होकर 100 से भी ज़्यादा घंटियाँ थी वहाँ पे, सब एक जगह जुट होके घंटियाँ बजाई सबने, फिर चिट्ठियाँ लिखी, प्रेयर्स करे साथ में, एंड इट वाज ट्रस्ट मी अ वेरी डिवाइन मोमेंट. और साउंड के वाइब्रेशन के माध्यम से सब एकजुट हो गए थे. इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट. मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है. सो आई थिंक वो सीन रील में भी था और रियल लाइफ में भी वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो हमारे लिए. देखिए फिल्म बहुत प्यारे लोगों ने मिलके बनाई है, बहुत पैशनेट लोगों ने मिलके बनाई है. वी कम फ्रॉम नॉन फिल्म बैकग्राउंड्स, वी नीड ऑल योर सपोर्ट. एंड एक ऐसा मतलब टाइम चल रहा है जहाँ पे वी नीड पीपल, फिल्म लवर्स, टू कम एंड वॉच सिनेमाज इन थिएटर्स. So this is going to be a big boost for us if you all come and support us and watch the film. And because it's about love, I think everybody would encourage and support this narrative. So please come and watch our film and support our film. Thank you. मैं यही बोलना चाहूँगा दैट बहुत लोग अपने घर छोड़ के आते हैं एक बहुत ही सीरियस इंटेंट लेके कि किसी को एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या एडिटर बनना है. तो इस फिल्म की खूबी ये है दैट इस पे जितने भी लोग जुड़े एक साथ, किसी ने भी कभी चूरी नहीं करी, सब ने मिलके ज़बरदस्त मेहनत करी है. नॉट विद एन आइडिया कि अरे वाह हमें 100 करोड़ कमाने या इतने फिल्म कमाने या कुछ भी नहीं कमाने, बट जस्ट विद द आइडिया कि एक अच्छी कहानी बतानी है एंड अपना ऑनेस्ट एफर्ट डालना है. जिसके लिए हमने जो भी लाइफ में रिस्क लिया है बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो इज़ बिकॉज अनसर्टनिटी तो रहती है. But I think just united by a single dream of being part of a film, being able to tell stories, is what we did with the film. And एक honest, sincere attempt है. ऐसी फिल्मों को चांस मिलना चाहिए ताकि सिनेमा की जो बाउंड्रीज हैं वो पुश हो सकें, ताकि और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, अपकमिंग फिल्म मेकर्स को मौका मिले अपनी कहानी बताने का, एंड उससे हमारा ही सिनेमैटिक लैंडस्केप बहुत ज़्यादा बेटर होगा. So I feel like even if it's a small film, it should get some support or audience should give it a chance, so that a faith gets restored. Thank you. Thank you so much. Please come on 6th March and watch the film.